describes the group of the companions of the Prophet ﷺ and the group that they were facing, the mushrikeen of Makkah al-Mukarram. दो बड़ी जमाअतों का सामना हुआ एक सामने. They stood against one another. This is how Allah has described the scene of the battle itself in the Quran al-Karim. और याद रहे, leading up to what we've covered so far, leading up to the battle, 5 या 6 मरतबा in the previous year, Yaqub Hijri में, the first year after the migration, सहाबा किराम की अलग अलग मकामात पर मुलाकात होती रही मुशरिकों से, मक्का मुकर्रमा के मुशरिकों से. And little skirmishes would break out. There would be face-offs with one another, but there was no major battle. It is only when the Prophet ﷺ received news, Allah के रसूल ﷺ को खबर मिली कि मक्का मुकर्रमा के अंदर अबू सुफियान ने वावैला मचाया हुआ है. Abu Sufyan has caused chaos in Makkah al-Mukarrama. Abu Sufyan उस ज़माने में मुसलमान नहीं हुए थे. बाद में फतह मक्का हुए थे. अबू सुफियान भी मुसलमान नहीं, हज़रत हिंदा भी मुसलमान नहीं हुई थी. अहले कुरैश और उमय्यद के ये बड़े बड़े सरदार, these big leaders of the Umayyad Empire, which later on became the Umayyad Empire after the Khulafai Rashidun. But it was this clan of Hazrat Abu Sufyan, then his son Hazrat Amir Muawiyah, or the leaders that came after that. They were known as the Umayyads, the Umayyad clan. Makkah al-Mukarrama में Abu Sufyan ने क्या बात फैलाई हुई थी? What news did he spread? कि मुसलमान अब जंग के लिए तैयार हो चुके हैं. मुसलमानों के पास बहुत हथियार भी हैं, हजारों की तादाद में हैं, और वो मक्के के ऊपर अब हमला करने वाले हैं. यानी झूठी अफवाह फैलाई. और मक्का मुकर्रमा के अंदर रहने वाले जो कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे, जहालत का बाप अबू जहल और मुगीरा और उसका बेटा वलीद, उतबा, शैबा, ये जितने लोग थे, अब ये सब जंग की तैयारियां करने लगे. और अतराफ के जितने छोटे छोटे गांव थे, इन्होंने सबका सहारा ले लिया. कुल मिलाकर इनके पास अब 1000 से ज्यादा लश्कर मौजूद थी. They now had an army which exceeded 1000. इनके पास ऊंट, घोड़े, हथियार, तलवारें, और ये निकल पड़े मक्का मुकर्रमा से निकल पड़े. बदर की इलाके में ही, in the area of Badr, 9 बड़े बड़े कुएं थे. There was 9 big wells just before where the battle itself took place in that area. मुसलमानों को यहाँ खबर मिली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में खबर मिली कि अब मक्के से ये निकल चुके हैं, अब क्या किया जाए? What do we do? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुहाजिरीन को इकट्ठा किया मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर. मुहाजिरीन कौन? वो सहाबाए कराम जिन्होंने मक्के से हिजरत फरमाई थी. The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम called upon the मुहाजिरीन. मुहाजिर इकट्ठे हो गए. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की तरफ से अब हुक्म आया है कि जिहाद हम कर सकते हैं. अब अपनी जान को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, मस्जिद को बचाने के लिए, घर को बचाने के लिए, दीन और मजहब की हिफाजत के लिए हमें अब तलवार उठानी पड़ेगी और अल्लाह ने इजाज़त फरमाई है. लेकिन इसके शराइत हैं. But there are rules and regulations that need to be adhered to. Jihad is only used in self-defense. Jihad, that's the main purpose of waging holy war, is to stop the enemy from attacking what is rightfully yours. Your religion, your masjid, your house, the house of Allah subhanahu wa ta'ala, your people, your community. If you know you're going to be attacked, then you stand for defense. If you know other Muslims are being attacked, then you go out and support them. You help them with holy war. इसी को कहते हैं jihad. लुग़वी माना में. In the linguistic aspect, लुग़वी माना में जिहाद का मतलब क्या?
what does jihad means? To struggle. Juhud, to struggle. It comes from the word juhud, to struggle. Juhud asal mein kya hai? What is juhud in reality? It is to struggle to become a better human being. अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना, इसी को जद्दोजहद कहते हैं. जद्दोजहद. To perform the action is jihad. Yes, the entity is called juhud. To perform it is jihad. This was a struggle that the companions of the Prophet ﷺ partook in, and the revelation of Surah Hajj happened. The verses that are in Surah Hajj today, कि jihad के दौरान किसी गैर को जो मैदान के अंदर नहीं है, who is not in the battlefield, उसकी तरफ आप तलवार नहीं उठा सकते. You can't lift any weapons against them. You only fight in combat against the opposition who are members of the army. The soldiers, the fighters, you only fight them. So anyone who is deemed a citizen, who is not in the battlefield, mamnu, forbidden to attack them. Only fight people in the army. Women and children and the elderly, mamnu, forbidden. You are not to go towards them, you are not to harm them. You are not to destroy any livelihood, whether it be animals or vegetation. किसी की बैल, बकरियों को, गायों को, ऊंटों को ज़बा करना, कत्ल करना मना जिहाद के अंदर. किसी की खेती बाड़ी को आग लगाना, वहां जाकर जुल्म उठाना ममनू. It is forbidden to attack anyone else's place of worship. किसी की इबादत की जगह पर हमला करना ममनू, forbidden. इसको जिहाद नहीं कहते. If you know a person is a religious monk, whether they belong to the Christians or the Jews or any other religion, you are to respect them. इनका अदब और एहतराम करना है. Unless they are fighting you in the battlefield, you are not to lift your arms against them. The moment it is announced jihad is starting, उसी वक्त आपको लड़ाई करनी है. और जब ऐलान हो कि अब खत्म हुआ, you are to put your weapons down. If there are set times कि रात को हम jihad नहीं करेंगे, you retreat back to your tents, then you are not in jihad anymore. Jihad is only whilst you are in the battlefield. This was the rule and regulation briefly that the Prophet ﷺ explained कि jihad इस तरह करना है हमें. लेकिन हम इस वक्त jihad की नीयत से नहीं निकलेंगे. We are not going to leave with the intention of jihad. Rather, we will go and we will try to negotiate with them. But what is the reason that you want to attack Madinah Munawwara, and why do you not give us back what is rightfully ours? हमारी ज़मीनें, हमारे घर, ये सब कुछ आप बेच कर और हमारा माल लेकर आप शाम में बेच रहे हो. ये पैसा तो मुसलमानों का है. This is rightfully ours. It belongs to us. You forced us out of Makkah. We left behind our land, our property. Yes? And now you're making use of it. Rightfully, it's not yours. By the law of the land of the Arabs, you cannot take ownership of something that is not yours. Allah के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक सहाबा इकराम को इस तरह समझा रहे हैं कि वहां जाकर jihad is the last option. Jihad is the last thing we want to do. पहले हमें वहां जाकर इनके साथ समझौता करना है, बातचीत करनी है कि भाई तलवारों को उठाए बगैर अगर बात बन जाए तो बन जाए. ठीक है, समझौता कर लो, खून खराबा ना होने पाए. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुहाजिरों को बुलाया था, when he had called summoned the muhajir, इनमें से सबसे पहले सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े हुए थे. सैयदना अबू बकर सिद्दीक stood up and he said, we are with you, हम आपके साथ हैं. फिर सैयदना उमर खड़े हुए थे. इनके बाद सैयदना मिक़दाद खड़े हुए थे. फिर सैयदना सअद इब्न अबी वक़ास खड़े हुए थे. यूं करते करते one after the other they all started to stand up. अंसारियों को पता चला, the Ansaris who were Sahabas of Medina, इनको पता चला कि मुहाजिर तैयार हुए हैं हुजूर के साथ निकलने के लिए, मदीने की हिफाजत के लिए, समझौते के लिए. तो हमारा क्या बनेगा? अंसारी रात को आए हुजूर के पास. They came to the Prophet at night. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा कि अल्लाह के रसूल आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? कहा क्या हम आपका साथ नहीं दे सकते? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको यूं कहा
कि ये मक्के से जो निकले हुए हैं इनका झगड़ा मुहाजिरों के साथ है. They have some contention against us, the migrants of Makkah. ये आपका झगड़ा नहीं है, ये हमारा झगड़ा है. उस वक्त अंसारियों ने क्या जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, हम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह नहीं है जो अपने नबी से कहें तुम जाओ अपना खुद का झगड़ा तुम संभालो, हम यहाँ बैठकर आपका इंतजार करते हैं. हम उन लोगों की तरह नहीं हैं. आप अगरचे आज हमें कहें कि समंदर के बीच हमें जाना है, तो रब की ज़ात की कसम, बेइज्जत रब, इसे नज़ात है, बेइज्जत रब, रब की ज़ात की कसम, हम आपके पीछे समंदर के बीच में भी खड़े होने के लिए तैयार हैं. अंसारियों ने जब अपना हौसला दिखाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया कि अंसारीज, you are allowed to join us as well. The Ansaris reminded the Prophet sallallahu alaihi wasallam that we are brothers to the Muhajirs. जिस वक्त हमने कलमा पढ़ लिया, ना हमारी जान हमारी रही, ना हमारा माल हमारा रहा. हमारी जान आपकी जान है, हमारा माल आपका माल है. जो आप चाहें करें, जो हुक्म फरमाए दरियाफत फरमाए, हुक्म जारी करें, हम मानने के लिए तैयार हैं. याद रहे रमजान का महीना था, फर्स्ट टाइम दे फास्टिंग, तड़पती हुई गर्मी, और हो सकता है कि एक मर्तबा गए बदर में तो वापस भी ना आए. There's a possibility once they leave they're not going to come back. लेकिन इनका ईमान देखें, ये ईमान का तकाजा देखें कि इस वक्त अल्लाह के रसूल ने हमें बुलाया है ना, इसमें खैर के सिवा और कुछ भी नहीं. There's nothing but goodness in this. The zeal that they had, the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. और याद रहे ये वो ज़माना है, this is that time where they've only been living in Medina for 2 years. It's not even been full 2 years yet. The 2 years haven't completed yet. They don't even have enough food to do sahri and iftar. न सहरी के लिए पूरा खाना है, न इफ्तार के लिए पूरा खाना है. लेकिन यहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उनको एक पुकार की, सिर्फ एक पुकार, एक मर्तबा पुकारा कि अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए हमें निकलना है. किसी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल फिर मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, वहां क्या सहरी के लिए इंतजाम होगा, क्या इफ्तार का इंतजाम होगा, कुछ होगा? ला, लब्बैक या रसूल, अल्लाह के रसूल हम तैयार हैं, हाजिर हैं हम. जो दिस शोज अस, इससे ही पता चलता है कि सहाबाए कराम की जमात कितनी बरगुज़ीदा जमात है. ये कहने का मकसद क्या? What's the point of me mentioning this? It's not to put down any Muslim. It's to make Muslims realize how high the companions of the Prophet are. ये कौन सी जमात है? Who are they following? They're following Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Look at their leader and look at the followers. Unique in every sense of the word, which is why it was after the battle of Badr. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله في أصحابي لا تتخذوا غردا من بعدي فمن أحبهم فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغضهم فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله. The best time is that of mine. सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है, यानी मेरे सहाबा कराम, they're the best of people. फिर उनके बाद का ज़माना, फिर उनके बाद का ज़माना. ए मेरे अल्लाह, मेरे बाद मेरे सहाबा को निशान मत बनाना. Don't make my companions targets after me. And now he's speaking to the ummah. ये हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि जिन्होंने मेरे सहाबा से मोहब्बत की, इन्होंने मुझसे मोहब्बत की. जिन्होंने मुझसे मोहब्बत की, यकीनन उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की. जिन्होंने मेरे एक भी सहाबी से बुग़्ज़ किया, उन्होंने मुझसे बुग़्ज़ किया. Whomsoever turns against, has contention against even one of my companions, has contention against me. और जिन्होंने मुझसे बुग़्ज़ किया, उन्होंने अल्लाह से बुग़्ज़ किया. ये वो बरगुज़ीदा जवाब है. इसीलिए हमारा उसूल है, ये अक़ीदे का भी उसूल है. It's a principle in our creed, in our belief, कि सहाबाए कराम के मुताल्लिक़ हम कभी भी ना बुरा सोचेंगे ना बुरा कहेंगे. We will never do this.
सरहद अफसोस की बात क्या कि आज सहाबा कराम की जमात, वो 313 जो बदर में निकले थे, तो 313 who went into Badr, वो जो वहां निकले थे, इनके मुतअल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? अगर मेरे 313 न जाते तो आज अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की इबादत करने वाला कोई ना होता। आज जो हम इबादत कर रहे हैं, जो हम रातों को तरावियां पढ़ रहे हैं, इकट्ठे होकर कुरान की तिलावत करते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, ये सब कुछ हम कर रहे हैं, हम शुक्र माने उन 313 का। इन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो गए थे ताकि दीन बचा रहे। और ये कहां से साबित? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा। लैलतुल बदर, बदर की रात थी, जब ये निकले थे मक्कतुल मुकर्रमा से, मदीनतुल मुनव्वरा से, और पहुंचे उस इलाके में जहां कुएं थे, तो सहाबा कराम ने क्या किया? What do they do? They said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, fill these wells with stones. इन कुओं में पाइने भर दें, पाइने रख दें, पानी निकाले खूब और पाइने यहां रख दें, पत्थर डाल दें कुओं के अंदर, ताकि वो जब मक्के वाले यहां पहुंचे ना, ये इस तरफ आ रहे हैं ना, यही रास्ता है इनका, तो देखेंगे कुएं हैं, पानी नहीं है, यहां से फिर उस तरफ आएंगे। They'll take a different direction. The companions, सहाबा कराम, उन्होंने कुओं के अंदर पत्थर डाल दिए, and they turned towards the area of Badr itself. आज जहां एक शहर है, बदर एक शहर बन चुका है, it's a small town. If you would have went maybe 15-20 years ago, Badr में there was nothing there, कुछ नहीं था वहां। आज एक मस्जिद भी वहां बांधी गई है, there's a masjid there today, and there's a few houses there, or there's one restaurant there as well, mashallah, really nice food. Mat'am Badriya is called, just so you know, Mat'am Badriya, try it inshallah. तो वहां बदर में अब ये पहुंच गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में मौजूद सहाबा कराम के साथ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को उस रात, पूरी रात को नींद अब किसको आनी है? पता है कि कल शायद हमारी जान भी जा सकती है, और कल रोजा भी रखना है हम। उस रात को अल्लाह ताला ने सहाबा कराम को अपनी कुदरत कामिला से इतनी गहरी नींद अता फरमाई कि सहाबा कराम सब आराम की नींद सोए, और रात को फिर अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई। Allah made it rain that night, so the sand of Badr becomes soft. मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे हैं। The Prophet was awake. ये आज की रात जो आने वाली है, he's awake. निकलते हैं बदर के मैदान में। मुस्तफ़ा जागे तो वाज़ेह है सिद्दीक़ अकबर कहाँ सोए, वो कैसे सो सकते हैं? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर इनके पीछे पीछे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा लिया, he took his walking stick, और ज़मीन पर निशान किए, he made a cross on the ground, एक निशान किया, और कहा कि इस उम्मत का फिरऔन यहाँ गिरेगा, the Fir'aun of this ummah यहाँ गिरेगा, फिर आगे चलेगा। Made another, who is the Fir'aun of this ummah? Abu Jahl, the father of ignorance, ये यहाँ मरेगा। उतबा यहाँ गिरेगा, शेबा का हाथ वहां गिरेगा, उसकी टांग वहां गिरेगी, उसका हाथ वहां गिरेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर निशान बनाते ही रहे। He made all these marks on the ground. And says to Sayyidina Siddiq Akbar, गौर करना, keep a lookout, कल जंग होगी, tomorrow a battle will happen, और अल्लाह और उसके रसूल और दीन के दुश्मन, this is where their body parts are gonna fall. तारीख इमाम तबरी में रवायत मौजूद है, अल-बिदाया व निहाया के अंदर भी मौजूद है कि जब वो दुश्मनान इस्लाम मरे और गिरे, उनके शरीर के हिस्से बिल्कुल उन निशानों के ऊपर पड़े हुए थे। अभी जंग शुरू हुई ही नहीं, और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह नबूवत से पहले से ही बता रहे हैं कि कौन कहाँ गिरकर मरने वाला है। भाई तारीख अब तबरी लिखने वाले
कोई हिंदुस्तान के तो मौलाना साहब नहीं थे, है क्या नहीं? Shaykh ibn Kathir al-Damishqi was a Syrian. Yes. Widely accepted in the different denominations of Muslims. He didn't make this narration up, did he? He put it down as was narrated with a chain of transmission. उस रात को, बदर की रात को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को हौसला दिलाते हैं। जब वो उठे थे सुहूर के वक्त, अब हौसला दिलाते हैं और क्या कहते हैं? इन्होंने बयान किया क्या सैयदना मिक़दाद ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको गले लगाया। The Prophet sallallahu alaihi wasallam hugged all of us, made us stand in सफ में खड़ा कर दिया, सफों में, और गले लगाया हमें। किसी के कान में उन्होंने कहा कि हिम्मत रखना, और किसी के कान में क्या कहा? तुम्हारे लिए बेहतरीन अजर है। To some he said, be brave tomorrow. And to others he said, there is a great reward waiting for you. To those he said, there is a great reward waiting. इनमें से 14 सहाबा कराम थे, there was 14 of them. यही 14 सहाबा कराम फिर जाम शहादत नोश फरमाते हैं बदर के मैदान के अंदर. They became martyred in the battle of Badr. 14 of them to whom the Prophet said, there is a great reward waiting for you. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात को, लैलतुल बदर की रात को इबादत में गुजारते हैं और सजदे की हालत में दुआ शुरू की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he started his supplication in prostration, सजदे में, और फिर आखिरकार सजदे से सर उठाया। he lifted his head और हाथों को यूं आसमान की तरफ ऊंचा कर दिया था। he had lifted his hands towards the skies, इस हद तक कि सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु अर्दा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक और पीठ मुबारक का हिस्सा जब्बा नीचे उतर चुका था और ये भी नजर आ रहा था हमें। They could see the whiteness of the blessed armpits of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is how high he had his hands lifted. और अल्लाह की बारगाह में बार बार या हय्यु या कय्यूम कहकर, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम कहकर, oh the one who has always been will always be, यूं कहते कहते दुआ कर रहे थे। The Prophet ﷺ was in a very intense state of conversing with Allah subhanahu wa ta'ala on the night of the 17th. And he says to Allah, अगर कल तूने इनको कामयाब नहीं किया ए मेरे रब, तो क़यामत की सुबह तक तेरी ज़मीन के ऊपर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हाल देखकर, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was saying to Allah, if tomorrow you do not grant them success, then till the morning of Qiyamah there will be no one left to worship you. I mean, this is a very deep statement. This is something so tremendous. Who has it in them to say this to Allah? Who can say this to Allah? Man? Rasulullah. मैं तो मालिक ही कहूंगा तुम्हें कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं तेरा में। Authority given to the Prophet salawatu rabbi wa salamun alayhi wa alayhi. Ya Allah, make them successful, grant them success until morning of Qiyamah. Muslims will worship you. If you don't, there's no one left to worship you. Yeah, look at the statement the Prophet is making here. Sayyidina Siddiq Akbar हैरान हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है, बस दुआ कबूल थी, बस हमें दुआ कबूल थी भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ खत्म की? Did he stop? ना, दुआ जारी रखा, दुआ को जारी ही रखा। फिर क्या इरशाद फरमाया? अबू बकर, मुझे मालूम है मेरा रब मेरी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा, लेकिन मांगने में जो लुत्फ आता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। I know my Lord will never deny my supplication upon this night, but what I feel, the attachment that I have to Allah in asking from Him, I don't find anywhere else. The tranquility I have when I am begging from Allah subhanahu wa ta'ala. ये उसी दुआ की बदौलत ये बरगुज़ीदा जमात, this tremendous group of warriors, they became successful. सामने की
लश्कर जो थी 70 of them Jahannam Rashid हुए, 70 of them, and 70 of them were taken back as slaves, and the rest of them दुम्बा कर भागे थे। भाग अबू सुफियान सबसे पहले भाग गए थे। हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु अर्दा, वो he was amongst the first to leave when he saw ये क्या Ali के हाथ में ये तलवार कैसी है? What kind of a sword is Ali using? It's got 2 blades on it, and when he lifts it, someone's head comes off. When he brings it back down again, there's another head coming off. छोड़ो इसको, ये पाँव तो कम नहीं बा, पायदा थी पाविन होता। Sayyidina Abu Sufyan रज़ियल्लाहु अन्हु, he started to retreat. With him, the other people who were with them, they started to retreat as well. मुसलमानों को अल्लाह ताला ने किस चीज से कामयाबी अता फरमाई? How did Allah grant them success? 5,000 angels came down. 5,000 मलाइका नाजिल हुए थे। आज अगर किसी को मौका मिले बदर जाने का, आप कोशिश करें। It is a bit difficult with the new rules and regulations वगैरह. And this year, I don't know if you've heard or not, the Hajj ministry have announced that all of the ziyaras in Makkah al-Mukarramah are banned. तो मक्का al-Mukarramah में जो हज और उमरा के लिए जाने वाला है, तो अभी से मैं आपको आगाह कर दूं, because we go for Hajj every year, so we have to keep up to date with these matters. So the latest news that we received from the Saudi embassy in London, that Saudi Arabia have banned all ziyaras to Jabal Noor, Ghar Saur. You can't go anywhere for ziyarah in Makkah anymore. भाई मैं कहता हूं, कोई बुरा चाहे लाख तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप समझ रहे हैं? I'm not telling you to retaliate against the Saudi government, actually I am, but I'm not telling you to do that. But if you get an opportunity, go. देखो बदर के मुताल्लिक they banned it how many years ago? 20 साल पहले ban किया था ना कि बदर कोई नहीं जा सकता, बदर कोई नहीं जा सकता। I've been 3 times since. We go, जाते हैं हम। You need to know the right people. So if anyone is planning on going, let me know, inshallah. I'll get you in touch with the right people. They'll take you, inshallah. पूरी ज़ियारत भी करवाएंगे और मतअम बदरिया में उड़ा जी दाल फ्राई हुई थी ना, वो टॉप जी दाल फ्राई। I'm telling you, बद्दा खेजा बदर का खाना, माशाल्लाह बदर जो लंगर। तो बदर के अंदर अगर आप जाएं, you will see a sand dune. A sand dune. That was the sand dune where 5,000 angels landed and came into the battlefield. 5,000 की तादाद में मलाइका उसके ऊपर नाजिल हुए और बदर के मैदान में उन्होंने जंग में शिरकत फरमाई। उस दिन सहाबाए कराम ने क्या देखा? What did they see? कि कुछ लोग आए हुए हैं जंग के अंदर हमारे साथ, हमने पहले तो उन्हें कभी नहीं देखा। इनके सरों के ऊपर सफेद अमामे हैं, they're wearing white turbans, and there was one who was wearing a yellow turban on that day. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, the one with the yellow turban, ये सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने बदर के अंदर अमामा पहना हुआ था, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। सहाबाए कराम ने सब ने अमामा पहना हुआ था। During the battle of Badr, सब ने अमामा बांधा हुआ था, सफेद लिबास पहना हुआ था। They all wore white clothing that day. और उस दिन सहाबाए कराम की जमात में amongst the सहाबा सिर्फ 8 तलवारें थी। There was only 8 swords. There was 9 to start off with. शुरुआत में तो 9 थी, फिर 8 हो गई। एक सहाबी रसूल थे, there was one companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam who was elderly, बुजुर्ग थे, और इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं भी जंग करूंगा, मैं चलूंगा आपके साथ बदर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप तशरीफ रखें, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप बस दुआ करें हमारे लिए। और नहीं, वो कैसे हो सकता है? मुझसे छोटे बच्चे जाएं और मैं बैठा रहूं? नहीं नहीं, मैं भी चलूंगा। उन्होंने जिद पकड़ी थी। He was saying that no, I won't. How can it be that me an elder, I sit and the youngsters, you go for war? ना हेरते ना बने बा, हेरते ना ही कमना आज। He insisted on going. उनके दस्ते मुबारक में in his blessed hand तलवार दी गई। As soon as he lifted the sword, the blade fell off.
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर पहले तो 9, अब तो 8 हैं हमारे पास। 8 तलवारें लेकर निकले थे, 8 swords and 70 died, 70 काफिर died। सोचें आप, बदर में कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी कामयाबी आई कि कुरान में अल्लाह ताला ने नाम ले लिया इनका। Allah mentioned them by name in the Quran, Badr. And Allah mentioned that it was I who made you successful with 5,000 angels. मैंने ही आपको कामयाब किया। यहाँ अल्लाह ताला फख्र से कह रहा है, Allah is boasting that I made the Muslims successful in Badr. They received divine assistance. अल्लाह की तरफ से उन्हें पर्दा गैब से मदद आ रही थी। ये मैंने जो आपको मुख्तसर सुनाया है कि लैलतुल बदर को क्या हुआ, on the night of Badr, the brief account that I've given you, that this is what happened on the night, this is what happened on the day, ये सब कुछ जो है तारीख के अंदर, in history, न कोई ऐसा वाकया हुआ था और न होगा, has never been and will never be। आज क्या जरूरत है हमें, today what do we need as Muslims, as a community? आप यकीन जाने, सरहद अफसोस की बात, there'll be thousands of Muslims, you ask them what happened on the 17th of Ramadan, and सत्रह जो रोज हुआ करो भाई, कोई करो बड़ी गाल है, they won't know that it's the Battle of Badr, they won't know that Sayyida Fatima went as well, they won't know that the mothers of the believers, they were there as well in the battlefield। हमारी माओ बहनों को इल्म भी नहीं होगा, इस बात से आगा भी नहीं होंगी कि सैयदा फातिमा खेमे के अंदर देख रही थी, she was looking from her tent कि क्या हो रहा है, और जो ही जख्मी सहाबा कराम आते तो वो दूसरी खवातीन के साथ इनकी मरहम पट्टी कर रही थी। She was looking after them, they were attending to the sick। सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु अन्हा। हमारे कहीं नौजवान, how many of our youngsters will be completely unaware कि आज जो हम हमारी जिंदगी मुसलमान की तरह जी रहे हैं, ये सब उन 313 की बदौलत है। It's due to the sacrifices of those 313, the martyrdom of those 14। आज कितने मुसलमान इस बात से गाफिल होंगे कि यही वो रात थी, this was that night, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल की दुआ को मुस्तजाब इस तरह फरमाया कि सुबह क़यामत तक इसकी बरकतें हमें मिलती रहेंगी। कहाँ गए वो मुसलमान? Where have the Muslims gone? What's overtaken us? What has made us fall into this ghafla and this heedlessness? कि इनको आज हम भूल चुके हैं, जिनकी कुर्बानियों, कोशिशों, मेहनतों की वजह से आज हम कलमा पढ़ रहे हैं। Is due to that event, is it not? वो एक दिन का वाकया सुबह क़यामत तक मुसलमानों की हिफाजत है। वो एक रात की दुआ सुबह क़यामत तक मुसलमानों की हिफाजत है। उन 14 सहाबा कराम की शहादत सुबह क़यामत तक मुसलमानों के लिए कामयाबी। आज आप देखें, शाम का मुसलमान मर रहा है, यमन का मुसलमान मर रहा है, फलस्तीन का मुसलमान मर रहा है, कश्मीर का मर रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तबाही फैली हुई है, अफ्रीका में बर्बादी फैली हुई है, मशरिक से लेकर मगरिब तक आप देखें, पूरी दुनिया में मुसलमान जालिमों के जुल्म के नीचे दबे हुए हैं। वे किसी का माल लूटा जा रहा है, तो किसी की इज्जत लूटी जा रही है, तो कोई बुरपुर जवानी में कत्ल हो रहा है, तो किसी की मस्जिद को आग लगाई जा रही है। क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा आज मुसलमानों के साथ? What isn't happening to Muslims around the world today? सब कुछ हो रहा है। अगर हम कामयाबी चाहते हैं, if we want success, मेरे भाइयों, घर पे सुनने वाली माँ और बहनों, turn back to the traditions of the people of Badr। लौट चलो अपनी आबा व अजदाद की तरफ।
What is their tradition? Yaqeen, certainty. यकीन रखो रब की जात के ऊपर। ईमान उस शे को नहीं कहते कि हमने 30 दिन रोजे रख लिए, 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, चलो हम ईमान वाले हैं। ईमान तो उसे कहते हैं कि अगर मौत का डर भी आए ना, even if you're threatened with death, फिर भी उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ने के लिए तैयार। आज तो वे किसी के सर के अंदर ही दर्द होना है और फजर की नमाज गए, बाद में फिर कज़ा भी नहीं। चलो ला इकराह फिद्दीन, there's no compulsion in the religion. If you're genuinely overtaken with a migraine, you can't move, you're dazzled, तो जब होश आए, when you've recovered, तो कज़ा तो कर लो अपनी नमाजों की। आज किसी को बस ये ख्याल आता है कि हाँ निकाले वो घर में है, काल जो रोज हो गयो। आप यकीन जाने हाजी साहब, वन सिस्टर, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उनकी इबादत कबूल फरमाए, कल रात को मैसेज किया, मौलाना साहब मुझे लगता है कल गर्मी है और मैं बहुत थक जाऊंगी, तो क्या रोजा छोड़ सकती हूँ कल? देखो, मैं छोटी बच्ची की बात नहीं कर रहा, शादीशुदा औरत, एक खातून, बच्चों की माँ। मैंने पूछा बहन जी आपका क्या काम होता है? मेरा काम तो बहुत आसान है, I do a very easy job, but I'm just thinking it's going to be really hot. I just saw the weather forecast. Can I leave tomorrow's fast? Yeah, alright. This is the state we're living in. Wallah, this is our state. This is our state. और हम सोच रहे हैं, we're wondering why we're in such chaos. We're wondering why our mosques are empty. We're wondering. हम सोच रहे हैं कि हमसे कुरान पाक की तिलावत क्यों नहीं होती। हम सोच रहे हैं क़ियामुल लैल, रात को हम जाग क्यों नहीं सकते इबादत के लिए। Why can't we do this? क्योंकि हमारा यकीन अल्लाह के ऊपर जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं है। सिर्फ हम आम मुसलमान नहीं, हमारे our leaders, उनको सरदार कहना मुझे बड़ी शर्म आती है। हुक्मरान, I don't find it befitting to give them this title. हुक्मरान कहना मुझे बहुत हया आती है कि इनको हम हुक्मरान कहें, जो माल और दौलत के लिए अपने मुसलमानों को कत्ल आम करना पसंद करेंगे, लेकिन उनको सहारा देना पसंद नहीं करेंगे। They're willing to see Muslims being slaughtered, Muslims running around becoming refugees, but they won't take them into their countries. Our so-called leaders, this is what we've become as a nation, globally, पूरी दुनिया में हम इस तरह हो चुके हैं। ये वो ज़माना है, this is that time जिसके लिए बदर की जंग हुई थी। सहाबा कराम को खौफ था, हुजूर को खौफ था कि कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि मुसलमान बहाना ढूंढे इबादत छोड़ने का, कहीं मुसलमान इतना कमजोर ना हो जाए कि हज के लिए उसके पास मालो ज़र आ जाए, लेकिन फिर सामने गाड़ी देख ली, यानी दिस ईयर बाय द कार प्रे हज नेक्स्ट ईयर। This is what we've become, मौलाना, this is what we've become. हाँ, आप बताएं मुझे, फिक़ह के अंदर मैं तो नहीं जानता। मुफ्ती साहब, if someone is financially, physically, mentally able, हज becomes farz on them and they delay the hajj, क्या फिक़ह के अंदर वो हज कज़ा नहीं हुआ? Muslims aren't even aware of this. मुसलमान को तो मालूम ही नहीं कि वो हज जो तुमने जानबूझकर छोड़ा ना, अब वो हज कज़ा करना पड़ेगा। फिर अपना अदा का हज करो। शरीयत तो ये कहती है, मुफ्ती साहब पता नहीं क्यों डरते हैं कहने से। आके बाठा ना मिलना, व्याधिकरण जी की जरूर नहीं, सच्ची गाल खरी गाल करो, हाँ सीधी बात करो, सही शरीयत की बात आए कह दो, say it, explain it, समझाओ हिकमत के साथ कि बेदो को शरीयत का ये हुक्म है, इसमें अगर मगर हम नहीं कर सकते। यानी मारू करो चोना मारू करो, कब्र में अचना मारो तो सवाल का जवाब निकले ना, they won't, will they? कौन आएगा? कोई नहीं।
यही मुंह पर मिट्टी फेंक कर 40 कदम थोरो रूना त्रेडी रूना वतारे वतारे पची आज नाले अकनी खाईने डकार दीने बैठा हूं। हाँ, this is the reality. If today we don't try to put the wrong right, whether it happens or not, whether it becomes right or not, it's our job to speak up. We have to speak up when we see batil, falsehood spreading. This was the reason the Battle of Badr happened. बदर की जंग हुई इसीलिए ना। This is the reason. भाई याद रहे, यही मक्के वाले थे जिन्होंने जनाब अबू तालिब से कहा था ना कि भाई अपने भाई के बेटे से कहो कि ये दीन का दावा बंद करो, मुंह मांगी कीमत देंगे, माल देंगे, जर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सब कुछ देंगे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? What did the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम say? Give me the sun in my right and the moon in my left, फिर भी नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ, और मक्के से जब निकले, जब आए मदीना तो मुनव्वरा, क्या साथ में लेकर आए? वही तन के ऊपर जो लिबास पहना हुआ था, यही लेकर आए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बदर की जंग जो हुई, उसकी बदौलत पूरी दुनिया में आज मुसलमान मौजूद हैं। अल्लाह का इतना फजल है कि पूरी दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन इन मुसलमानों में से कितने दिल के मुसलमान हैं? इस जबान से तो कह देना बड़ा आसान, इट्स वेरी इजी। I'm not doubting anyone here, by the way. अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जो अहलुस सियाम हैं, people who are fasting, people who are praying, Allah accept it from you and grant you more tawfiq, more ability to worship. हमारी माई बहनें जो मेहनतें कर रही हैं हमारी इफ्तार के लिए, हमारी सहरियों के लिए, अल्लाह ताला इन और इज्जतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। लेकिन हमारी कौम के अंदर हमें बेदार होना बड़ा जरूरी है। We need to wake up. We need to wake up. We need to become serious about our religion. We need to stop making our religion a practical thing. Make it a reality. Practical meaning what? But when it's practical, then I'll pray. If it's not practical, I won't pray. No. No. Every given opportunity, yes, Allah ka zikr karte raho. When it comes to your fara'id, plan your journeys revolving around your salah. Plan your day revolving around your salah. If you're at work, college, university, सफर पर जा रहे हो, ये हो, औकात देखो, check the time is भाई ज़ोहर का वक्त कितने बजे शुरू होता है, मगरिब ये होगी, वो होगा, what am I going to do for salah, नमाज के लिए मैं क्या करूँगा? If you're not sure what to do, तो उलमाए कराम से राब्ता करें, पूछें, हज़रत देखो मगरिब इतने बजे है, ईशा इतने बजे है, मैं सफर पर हूँ, मैं क्या करूँ, ये है, वो है। आसानी से जवाब मिल सकता है। आज हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। सलाह इज द लास्ट थिंग ऑन आवर माइंड। लेट्स बी ऑनेस्ट। नमाज के बारे में तो हम सोचते भी नहीं हैं। अने हिदाती बोल्टन मिन्नो है अने रास्ते में 4 रकात ला करे के उबिनो छड़ी होने आने भूखी बनना सी आराम थी। हैं? This is what we do. Look at the people of Badr. मदीने से निकले, एक खजूर भी साथ में नहीं। इस्लाम का पहला रमजान, पहली मर्तबा रोजा रखने वाले सहाबा कराम निकले और बदर के मैदान में पहुंचे। जब पूछा गया कि इफ्तार के लिए क्या करोगे, रसूल है ना, फिक्र मत करो, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह इज हियर फॉर अस, फिक्र मत करो, वो रब इतना मेहरबान, वह कभी हमें भूखा नहीं सुनाएगा। यकीन, यकीन। You need to have that certainty, you need to have that conviction in Allah subhanahu wa ta'ala. चाहते हैं कि अल्लाह ताला कामयाब करे, तो भी अल्लाह के दीन में ढीले मत बनो। Don't become soft in the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. Make Islam genuinely your way of life. अपनी जिंदगी बना लें इस्लाम को। कामयाबी इसी में ही है। इस्लाम को छोड़कर there is no success anywhere else. कहीं नहीं। आप यकीन जाने, कुरान और सुन्नत को छोड़कर, कुरान और सुन्नत को छोड़कर तुम पूरी जिंदगी सर मारते ही रहोगे, खुशी नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। मिलेगी तो इस एक अल्लाह के कलाम के अंदर ही है। कामयाबी अगर है तो रसूल के सुन्नत के अंदर ही है।
आप यकीन जाने इस कुरान और सुन्नत के हिफ्ज़ व अमन के लिए ये 313 निकले हुए थे बदर के मैदान में. This is the reason they went. Because it was a genuine threat that if the kuffar, the Qurayshi kuffars, if they come into Madinah al-Munawwara, they will annihilate us. There will be no Muslims left. मुसलमान रहेंगे ही नहीं. अल्लाह ने किस तरह से कामयाब किया, कैसे कामयाब हुए कि आज सदियां गुजर गईं, उनका नाम नहीं मिटा. सदियां सदियां बलबले मिट गए, बलबले मिट्टी के अंदर, हड्डियां भी नहीं रही उनकी, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं. और आज बदर वाले आज भी जिंदा हैं. बदर वाले आज भी जिंदा हैं. भाई ये कौन लोग हैं पता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने हुजरे से गुजर रहे थे. हुजरे के अंदर इनसाइड द रूम सहाबिया इकट्ठी होकर दफ बजा रही थी. बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है. they were playing the daf. और क्या कह रही थी? बदर वालों की तारीफ है. बदर वालों की गीत गाई हुई बदर वाली कि बदर में असांजा मारो उसियावा जंग करियावा दफ बजाकर. फ्लूट वगैरह वहां मौजूद नहीं था, दफ बजाकर, सिर्फ दफ. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और सुनने लगे. The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stopped and started to listen to them. They were praising the people of Badr and playing the daf. The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stopped. उन्होंने हुजूर को देखा और कलमे बदल दिए. They changed the words. उनकी तारीफ के बजाय, सहाबाए कराम की तारीफ के बजाय हुजूर की तारीफ करने लगे. तो हुजूर ने उन्हें रोक दिया. The Prophet stopped them. हुजूर ने ये नहीं कहा कि मेरी तारीफ करना शिर्क है, मेरी तारीफ करना बिदअत है, मेरी नातें पढ़ना ये है, मेरी नातें पढ़ना. हुजूर ने ये कहा था, बल्कि हुजूर ने क्या कहा? बुखारी शरीफ पढ़कर देखें. चेक बुखारी. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, भाई तुम जिसकी तारीफ कर रही थी ना, उसी की तारीफ करो. बदर वालों की तारीफ अल्लाह को भी पसंद है. तो बदर वालों की तारीफ अल्लाह को पसंद, हुजूर की तारीफ क्या अल्लाह को पसंद नहीं होगी? आप सोचे तो सही. बुखारी शरीफ तो सब मानते हैं ना, कुरान और सुन्ना. ब्रो, where's your sunnah now? Where's your sunnah now? तो लोगों को रोकते रहते हो कि नहीं, हुजूर की नाते मत पढ़ो, हुजूर की तारीफ मत करो, शिर्क हो जाएगा. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. सहाबाए कराम तारीफ करके मुशरिक नहीं हुए तो मुसलमान होकर मुशरिक कैसे हो जाओगे? हुजूर को थोड़ी ना कोई अल्लाह कह रहा है, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, वो तो है ही शिर्क. हुजूर को रब कोई नहीं कहता. हुजूर के बारे में हम ये नहीं कहते कि वो रब है, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम. ये जरूर कहते हैं कि जितने वो रब के करीब हैं उतना कोई करीब नहीं है. जितना हुजूर रब के करीब है उतना कोई करीब नहीं. और हुजूर के सबसे ज्यादा करीब कौन? बदर वाले. The Prophet sallallahu alaihi wasallam himself said, the most closest to me and Allah are my people of Badr. बस एक और हदीस आप समाप्त फरमा लें ताकि so we understand कि बदर वालों का मकाम क्या है. सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु अर्दा, उनका एक दिन शिकवा यानी कुछ हो गया था, अनबना हो गया था सैयदना खालिद बिन वलीद के साथ. थे वने यानी तो में थे वने कोई भी यानी उस भाई को पेरी ना यानी दुई को पेरी या नहीं करो ने तो में थे वने ना हो जाता है कभी कभी. कोई नहीं थी वने है कि नहीं. फिर जुम्मे के वक्त हमें याद दिलवाया गया कि मुफ्ती साहब की और मेरी कभी तू में हो जाती है. तो मैं तो कभी तू नहीं करता, मैं तो आप करता हूँ, तू नहीं आप. तो इस तरह दो सहाबे रसूल के दरमियान हो गया. They had a disagreement. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf and Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf हुजूर के बारगाह में आए. Came to the Prophet. अल्लाह के रसूल, सुनो खालिद क्या कह रहे हैं, मुझे तंज दे रहे हैं, ताना मार रहे हैं मुझे. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ए खालिद, या खालिद, बदर की सहाबी को कुछ मत कहो. हुजूर ने ये नहीं पूछा कि बात क्या है, झगड़ा क्या है, करो गाल करो मार करो थियो केयर की ना, nothing. All he said was, ya Khalid, don't taunt this companion, he is part of Badr. He was there in the battle of Badr.
सैयदना खालिद बिन वलीद ने क्या इरशाद फरमाया, या अल्लाह के रसूल, मैंने सिर्फ एक सवाल किया, आई ओनली आस्क्ड अ क्वेश्चन, उन्होंने गुस्से में जवाब दिया है, आंसर इन एंगर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से क्या कहा, ए अब्दुर्रहमान, खालिद को कुछ मत कहा करो, अल्लाह की तलवारों में से ये भी एक तलवार है। Look at the way the Prophet ﷺ dealt with it, straight up. अरे तू इनके की ना जो तू इनके मत, don't say anything to why, ये बदर वाला है और उसको मत कुछ मत कहो, ये अल्लाह की तलवार है, इस sword of Allah। बदर वालों की अहमियत देखें, सदियां गुजर गई थी, even after decades had passed, जब बदर वाले पर्दा फरमा चुके थे, कब्रों में आराम फरमा रहे थे, उनके पोते और नवासे उनकी लोग इज्जत करते थे। क्यों? आपके दादा बदर में मौजूद थे, तुम्हारे नाना बदर में मौजूद थे। People used to, you know, their grandchildren would get invited by the people of Medina to their houses to eat. Why? Your grandfather was a warrior of Badr. अहले बदर की ये इज्जत है अल्लाह और रसूल के नज़दीक। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको तौफीक अता फरमाए कि अहले बदर की बारगाह में हम खिराज अक़ीदत पेश करते ही रहें। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। आज रमज़ान मुबारक की 17 रात है, लैलतुल फुतूहात है। आज की रात में मेरे भाइयों खूब इबादत कीजिएगा, कम अज़ कम आप 100 मरतबा, एटलीस्ट 100 टाइम्स से या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, और दुआ कीजिएगा। जो दुआ आज की रात इंशाअल्लाह सबकी दुआएं रब्बे करीम अपने फजल से कबूल मंजूर फरमाए। अहले बदर के सदक़े में रब्बे करीम हम सब की रोज़ों को, इबादतों को कबूल मंजूर फरमाए। खुदा बंदा करीम मलिक का बादशाह हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमाए, इज़्ज़त की मौत अता फरमाए, हमारे छोटे बड़े गुनाहों को रब्बे करीम माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़ुल जलाल आलम इस्लाम पर अपना खुसूसी करम फरमाए। मौलाए करीम बीमारों को शफात अता फरमा, बे औलाद को औलाद अता फरमा, जिनके औलाद हैं इनको नेक और सालिह बना दे। हमारी मस्जिदों की हिफाजत अता फरमा, उलमा अइम्मा हज़रात की हिफाजत अता फरमा, हमारे मुसल्लियों की हिफाजत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे खास और आम की सबकी हिफाजत अता फरमा। रब्बे करीम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान ज़ालिमों के जुल्म के नीचे दबे हुए हैं, रब्बे करीम अहले बदर का सदका उन्हें तो निजात अता फरमा, मौला उन्हें निजात अता फरमा, रब्बे करीम निजात अता फरमा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत अता फरमा, हरमैन शरीफैन को रिहाई अता फरमा। रब्बे करीम अहले हक अहले सुन्नत वल जमात का परचम वहाँ लहरा दे। रब्बे करीम वहाँ जो जालिम बैठे हुए हैं उनको तू वहाँ से हटा दे। रब्बे कायनात ज़ुल जलाल फजल फरमाने तो के न लगे वार, न हो मायूस तेरे दरबार में उम्मीदवार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद दिलवा रहा हूँ कल इंशाअल्लाह 7 बजे कच्ची सुन्नी मुस्लिम हॉल में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 7 o'clock the program will start. It is off Gwendolyn Road on Margaret Street. Off Gwendolyn Road on Margaret Street. The program will start there at 7 o'clock. इसमें लंदन से उलमा कराम आ रहे हैं in English to speak about Badr, और अहले बदर की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा और इफ्तार भी वहाँ होगी इंशाअल्लाह। जो लोग वहाँ न पहुँच सकें तो यहाँ मस्जिद में इंशाअल्लाह कल मुफ्ती साहब अहले बदर की मनाक़िब करेंगे इंशाअल्लाह। He will do the manaक़िब of the people of Badr tomorrow in the masjid. अल्लाह ताला सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। सलाम।